previous years, please do them very 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 diligently. I am a blind propagator of previous year question, and मैं लिख रही हूँ मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, वेरी वेल प्रिपेयर्ड. आई स्टार्टेड माई पेपर विद इट कि थोड़ा फ्लो अच्छा रहेगा. मैं यहाँ तक आ गई और मेरा अभी पॉइंट्स बचे हैं, मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे और मैंने कंक्लूजन भी नहीं लिखा, एंड आई रियलाइज माई स्पेस इज गॉन. आई हैव ओनली 2 sheets फॉर दैट आंसर. स्क्रूड. बहुत अच्छा शुरू किया था, बहुत डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, कंक्लूजन नहीं लिखा है उस आंसर में. मार्क्स कम मिले होंगे ना. प्लीज़ ये सब कोशिश बिल्कुल मत वहाँ करना कि हम तो स्टंट करेंगे, विल पिक अप अ टॉपिक जो उस पर कोई नहीं लिख रहा है. प्लीज़ डोंट प्ले ऑल दोज गेम्स विद योर सेल्फ, दे आर वेरी रिस्की ऑन द फाइनल डे. बिगेस्ट मिस्टेक जो मुझे पता चली अभी तक वो यही है कि वी थिंक वेरी स्मॉल, वी हैव टू थिंक अ बिट लार्जर. Thank you. So, hi everybody. A little brief about me before I start telling you some tips and everything. So, I did my graduation back in 2019, completed it from SRCC, Delhi University, post which started with civil service preparation, gave 3-4 years of dedicated time to CSE, and that spiral was like a long for me because I missed mains by I guess 12 marks in 2023 and 4 marks in 2024. So it was a close miss. So 2025 was a break year and I decided to shift to IES and take a drop and start afresh with the new paper. So IES, this was my first attempt, and on this same very day last year I gave my UGC NET ka paper, and on 5th January I enrolled for the crash course here at Bliss Point. So that's how the journey started. Just a caution before I tell my strategies. I have given 5-6 months of dedicated prep to this paper. I was in my final year of masters when I began with it. So just letting you know that my optional was also economics. So somewhere or the other that 40-50% overlap helped me. But like I want you to remember this so that it doesn't come out like that I have prepared 100% in the 5 months that I've given to IES. It was like some portion of it was already covered for me because of CSE. So sir asked me mostly ki there are people in like your batch also who are preparing for both the papers simultaneously. So I have not ventured into a voyage like that. I decided to give one paper at a time. For the year I gave IES, I did not appear for CSE in 2025. That was a conscious call because I thought that I would not be able to give proper attention to 2 papers simultaneously, with both of them having very separate demands. So, rahi baat sources ki, it's common for every topper. I guess everybody reads the same books. There is nothing new in that. So, my point of being here and addressing you people today is more likely to tell you some tips and tricks that work for each GE paper. Because somewhere or the other we sometimes miss the small points in terms of like we are able to cover the books, but we don't realize the small tips which help us to score better. So I feel ki that's more a need to be addressed. I'm not addressing the books. If there is any doubt with respect to any subject in particular, I'll address that, but mostly I'll like to tell you what different you can do in each of the GE papers to score a little better. So I guess I'll start with it and I'll take any of the questions probably towards the end. So for specifically starting with English and GS, I guess most of the people who are appearing only for IES face a lot of problem with general studies because it feels too much to cover. So for GS, I'll say ki for GS we have 4 main papers that we have to do. Okay, first is polity. Second is history. Third we cover is mostly economics, that they'll ask you with regards to scheme and everything. Fourth, you can take it to be geography or environment, a blend of anything. For history, we have to know that they ask you both. They will ask ancient also and they'll ask modern also, because that's a pattern that we have seen over the years.
What I did specifically for GS preparation, I was from CSE, so I knew a lot of GS because I had done that in detail. But the GS from CSE doesn't really help much in IAS given the less amount of quantity that we require. We don't read Nitin Singhania for art and culture in IES because that is not required to be attempting 2 questions, say of even 10 marks, because you have to write for 5 marks. So that is not too much to be putting a lot of effort in. So what worked for me was I collected the papers of all the past years. I put them liberally on ChatGPT, asked it to sort it subject wise. It gave me a list of all the questions that have been asked in past 10 years. And then I figured out, okay, this topic has already been asked. So there are very little chances of questions getting repeated unless and until it's a very specific topic. So if you do this exercise, you will realize in polity this happens that they have asked a question on judiciary every year. But the question has changed. 1 year it has been judicial activism, 1 year it has been judicial review, 1 year it has been something related to the powers of Supreme Court. So somewhere or the other it gives you an idea, okay, UPSC's favorite is judiciary. So from that you can take a cue, okay, judicial review done, judicial activism done, could be judicial overreach as a topic. So from there you pick it up that, okay, judicial overreach might be an important topic for me. Like I remember back in the year when NJAC came in, 99th Constitutional Amendment Act, what they did was they asked a question about judiciary specifically referring to NJAC. So somewhere or the other you have to take that cue that, okay, if there is any judgment which has been in news, like Keshwanand Bharti, when he passed away, we knew that basic structure is important that year. So somewhere or the other such tips and tricks help. So for that you can refer to any coaching ka monthly magazine. Just skim through the index of that magazine and see what particular questions can be asked. Please note, for this paper, they don't ask you too much in depth, neither they ask you very tough questions or analytical questions. The questions they are gonna ask you are very simple and plainly stated. So there is no problem in terms of addressing those questions or understanding those questions in terms of what is UPSC asking. You will understand it very well, उसमें कहीं भी problem नहीं आएगा. The main target for us is to figure out what all topics are important. I'll give you an example from history. I was collating the questions of ancient history when I was about to appear. So when you appear in small time, like I did in like 5 months, you play very strategically because you don't have time. So somewhere or the other, sometimes it's an advantage also because you don't study things which are not important. You focus on important stuff. So I remember doing ancient ka part and I realized that they have never asked Chola. Never. So somewhere or the other, that was at the back of my mind that they haven't asked Chola. And even before one day before the actual GS paper, I was remembering Chola ka answer and I even drew a small sketch of that Nagraj thing in my notes. Because Natraj thing in my notes, because I was like, if they're gonna ask it, I'm gonna mention it in a tabular form or in the form of a diagram that, okay, the most important contribution of Cholas to the ancient art and culture would be this. So somewhere or the other, I had like 5-6 well written points for Chola, and that was the first question of GS paper that I attempted. And I know that if they have started like correcting my paper from question 1, the question 1 would have been really nice. I wrote that question with a lot of like all my heart into that question. I don't remember the rest of the 19 I attempted, but I remember that question, that I wrote it well. So that helps you because you have to realize that UPSC also understands the psyche. So you have to understand their psyche also, that okay, this is how they function. So my important tip for GS is, please sort the questions. Go through the index of whatever source you wish to refer. You can refer to any coaching magazines. You can refer to any coaching material. If not, you can simply refer to NCERT. That is also more than enough for GS. You don't need to do too much. For environment and geography portion, geography mein NCERT won't help much because if you see the questions, they have asked very geography and environment mixed questions. Urban flooding is not a topic that you will find in NCERT. It's a current based topic relevant every single year. So if they are asking urban flooding, I will say it is more a current topic rather than a static topic.
So for geography portion, I'll say that static doesn't work. You can just skim through the monthly magazine and current affairs and see what all topics are in news for the environment section and in particular, and that is gonna help you in terms of finding ki, okay, this topic we can do. Like heat waves was important for 2025. That was one good topic that I prepared, that okay, they might ask me heat waves. So such small topics, if there is tsunami somewhere, they can ask you tsunami. If there is earthquake somewhere, they can ask you earthquake, because those are not very technical topics. They won't, like they have asked even El Nino also. I saw that question and I was flabbergasted. Okay, why is this question even relevant in IES? What are they doing with El Nino? Because as a topic we find it technical to understand what is El Nino, but they have asked it, so the consequence of it is that you have to be prepared with La Nina. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एल नीनो अगर पूछा है तो इंडियन ओशन डाइपोल आ सकता है, अगर एल नीनो पूछा है तो लानीना आ सकता है. यू कांट बी ब्लेमिंग यूपीएससी फॉर इट. ओके, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वो आपको पढ़ना था. सो प्रीवियस इज गोना गिव यू दैट हिंट. सो जीएस में से ज़्यादा कुछ करने का नीड नहीं है. आई फील 1 week इज सफिशिएंट फॉर जीएस. Just pick it up for 1 entire week and play very strategically with it in terms of previous year based practice. So you can prepare very small notes, prepare a one-sider on each topic that you find relevant. कुछ topics repeat होते हैं. I'll say जो भी topics repeat होते हैं, please do them very well. अगर judicial review आ चुका है but इस साल कोई एक specific judgment आया जिसकी वजह से judicial review news में है, please do judicial review again. सो आई एम नॉट सेइंग टू ब्लाइंडली लीव द टॉपिक्स कि यूपीएससी ने तो ये पूछ लिया अब तो ये पूछेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इस तरह का पैटर्न नहीं है. बट हाँ, अगर न्यूज़ में उस साल, अब जैसे एनजैक है, उस साल न्यूज़ में था तो आ गया, ज़रूरी नहीं है कि अब फिर से आएगा. बट हो सकता है कि कोई ऐसा जजमेंट आया विच इज़ अगेन रिलेटिंग टू द फर्स्ट जज केस और द सेकेंड जज केस, देन इट कैन बी इम्पॉर्टेंट. सो दैट्स मोर और लेस वॉट वर्क्स फॉर जीएस. इंग्लिश के लिए तो गाइज ऐसे ही है इम्पॉर्टेंट जो है, उसके अलावा पे तो किसी चीज़ पे उतनी मेहनत मत करो. कॉम्प्रीहेंशन यू विल बी एबल टू सॉर्ट, वो आराम से हो जाएगा, उसमें इतना टफ भी नहीं आता. कॉम्प्रीहेंशन इट्स अंडरस्टैंडेबल. प्रेसी में तो हम 11-12 से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं. एक बॉक्स बन के आएगा वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रॉपर टेबल वाला, जिसमें एक एक वर्ड हर बॉक्स में यू हैव टू पुट एंड यू हैव टू कंडेंस द लेंथ. सो दैट इज़ एन ईजी एक्सरसाइज टू डू. अगर किसी को भी उसमें प्रॉब्लम होता है, टेक अ न्यूज़पेपर का आर्टिकल 1 डे, कोई भी छोटा आर्टिकल पढ़ो एंड प्रेफरेबली ऑनलाइन पढ़ लो. उसको कॉपी पेस्ट करके वर्ड में पेस्ट करो, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द लेंथ कि सपोज 200 वर्ड्स है, ट्राई एंड कंडेंस इट इन 60 वर्ड्स 70 वर्ड्स. वर्ड में ही करके देख लो, तुम्हें नीचे आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमने कंडेंस कर लिया. सो उस तरह यू कैन डू अ प्रेसी प्रैक्टिस इफ़ यू फील द नीड ऑफ इट. मैंने तो किया ही नहीं था भाई, टाइम ही नहीं था, जी कर लिया था, वही बहुत था. ये तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं प्रेस ही करूँ. इंग्लिश पे, एसे पे आई हैड अ गुड कमांड. आई वॉज स्कोरिंग वेल इन एसे इन CSE ऑल्सो. सो एसे में अगर प्रॉब्लम है तो आई एड्रेस दैट. एसे में बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मुझे अभी तक अपने केस में भी लगती है, दैट इज़ राइट ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ CSE on the rough side that you're gonna get for the essay paper. So English की जो भी आपको बुकलेट मिलेगी उसके पीछे में आप देखोगे रफ शीट्स रहती है, हर पेपर में रहती है, 4 या 5 साइड्स वो आपको देते हैं. जस्ट राइट डाउन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ CSE, रिमेमराइज द सब्जेक्ट्स कि पॉलिटी है, IR है, हिस्ट्री है, एथिक्स है. हिस्ट्री के आगे भी लिखो एंशंट है, मॉडर्न है, मिडीवल है, फिर जोग्राफी है, इन्वायरमेंट है, साइंस है, इको है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स लिख लो. लगभग वही होंगे 10, 12, 15 सब्जेक्ट जो भी. राइट ऑल ऑफ देम. उसके बाद अपना टॉपिक देखो जो तुम्हें लगे, और प्लीज़ ये सब कोशिश बिल्कुल मत वहाँ करना कि हम तो स्टंट करेंगे, विल पिकअप अ टॉपिक जो उस पर कोई नहीं लिख रहा है. प्लीज़ डोंट प्ले ऑल दोज गेम्स विद योर सेल्फ, दे आर वेरी रिस्की ऑन द फाइनल डे. अगर यू फील दैट अर्ज कि मुझे बहुत ही अलग टॉपिक पे लिखना है, एक बार उस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस कर लेना इन योर मॉक्स, तब वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना. आई हैव सीन पीपल राइट वेरी कन्वेंशनल एसेज इन ऑल देयर टेस्ट कॉपीज एंड अल्टीमेटली अटेम्प्टिंग एन ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट टॉपिक विच इज़ आउट ऑफ देयर फोटे ऑन द फाइनल डे. कि हमें लगा इस टॉपिक पे तो हर बच्चा लिखेगा. यू राइट ऑन दैट सेम टॉपिक बट राइट इट सो गुड दैट योर एसे स्टैंड्स आउट. वो बेटर प्ले करता है रादर देन यू अटेम्प्ट अ टॉपिक जो आपको ही नहीं समझ में आ रहा कि टॉपिक बोलना क्या चाह रहा है. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस. CSE 2024 का जो एसे का टॉपिक था, दैट वॉज सम रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, जिसमें वो कुछ फॉरेस्ट का बता रहे थे. इट्स एन एंड ऑफ अ सिविलाइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग समथिंग. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एंटायर टॉपिक, but I have seen people write the entire essay relating forest to only environment and they haven't scored good because problem क्या हुआ, हमने देखा ही नहीं कि वो टॉपिक भी मल्टी डायमेंशनल था.
हमने बस सोचा कि फॉरेस्ट दिया है तो इन्वायरमेंट से ही रिलेट कर रहा होगा, और हमने पूरा बता रहे हैं हम कि पहले ग्रीनरी होती थी, फिर हमने फॉरेस्ट क्लियर किया, उससे हम ईस्टर्न स्प्रेड हुआ जो एंशिएंट इंडिया का पूरा स्टोरी है, हमने उसको पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल डाल दिया कि अब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट वी फेल टू रियलाइज दैट ओके फॉरेस्ट कैन हैव अदर डायमेंशंस ऑल्सो. सो ये हर चीज़ के लिए वर्क करता है. वेन यू पिक एन essay, pick it with the mindset that every essay that they have given you, there are 12-13 dimensions of it subject wise. You will never falter in essay in that case. So आपको क्या करना है, you pick up a topic, you think about it कि ये topic है, इसको मैं कैसे एक interpretation दे सकती हूँ या दे सकता हूँ in terms of say a subject on environment or a subject relating to history. कि अगर सपोज मैं एग्जाम्पल दूँ कि हम पीस पे लिख रहे हैं, वी नो कि वी कैन राइट अशोका, कि अशोका को जब कलिंगा वॉर हो गया तो अशोका बिकेम द धम्मा प्रोपोगेटर, राइट. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पीस व्हेन एवरीबडी माइट कोट बुद्धा फॉर इट कि बुद्धा वॉज अ पीस प्रोपोगेटर. बट आपको ये समझना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल यू रिटन हिस्ट्री देयर यू विल नेवर बी एबल टू रिलेट पीस टू बुद्धा. वंस यू राइट एंशिएंट एंड यू थिंक अबाउट इट कि ओके पीस पे लिखना है, मैं ये एग्जाम्पल्स एंशिएंट में दे सकता हूँ, मैं मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी का एग्जाम्पल लिख सकती हूँ, मैं मिडीवल में एक पॉइंट तक शायद अकबर कोट कर सकती हूँ किसी एक पॉइंट पे कि हाँ अकबर ने कुछ प्रमोट किया, अकबर ने रिलीजियस टॉलरेंस दिखाया या वट. तो आपको ये समझना पड़ेगा इन्वायरमेंट है, आई कैन पुट कि ग्रेटा थनबर्ग आई बिकॉज दैट इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ पीस. पीस इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू कि बस हमने एक एंगल ले लिया कि पीस इज़ दैट. इन्वायरमेंटल पीस भी कुछ है, इकोनॉमिक पीस भी कुछ है कि हम लोग टर्बुलेंस में थे, देन डॉक्टर मनमोहन सिंह स्टेप्ड इन एंड ही हेल्प्ड अस विद द 1991 रिफॉर्म्स. यू कैन पुट इट अक्रॉस इन लॉट्स ऑफ वेज. सो यूपीएससी वहाँ पे आपका होलिस्टिकनेस चेक कर रहा है कि हाउ वेल कैन यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड हाउ वेल कैन यू कोलेट इट टू द रियल वर्ल्ड. सो ऐसे में बिगेस्ट मिस्टेक जो मुझे पता चली अभी तक वो यही है कि वी थिंक वेरी स्मॉल, वी हैव टू थिंक अ बिट लार्जर. So that is an entire strategy for essay and it has worked for me and I hope कि ये काम आएगी. Stepping into GE1, the most haunted paper still for me. मतलब if I have to give IES again, I think the paper that will haunt me again is GE1 only. So GE1 के लिए माइक्रो में the best part of IES is that they have written the syllabus very beautifully. एक एक टॉपिक इतने प्यार से उन्होंने बताया कि इसमें कार्डिनल भी पढ़ लो, ऑर्डिनल भी पढ़ लो, आईसी भी पढ़ लो, मार्शल भी पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, क्लियर एक एक पॉइंट दिया हुआ है, उसी के हिसाब से पढ़ो. जो वो बोल रहे हैं पूरा कवर कर लो, उसके बाद सोचो कि हाँ हम एक्स्ट्रा करेंगे. उतना हो जाए बहुत है, मतलब नीड नहीं एक्स्ट्रा करने की. कई बार क्या होता है कि उसके आजू बाजू का सब प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन टॉपिक्स नहीं कवर होते जो वो बोल रहे हैं कि आएंगे, तो वहाँ पे गलती मत करना. प्रीवियस ईयर्स प्लीज़ डू देम वेरी 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 डिलीजेंटली. आई एम अ ब्लाइंड प्रोपोगेटर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. मैंने एक भी मॉक नहीं लिखा है फॉर IES, नॉट इवन अ सिंगल मॉक. यू कैन आस्क एनी कोचिंग दैट एग्जिस्ट फॉर IES, यू विल नेवर फाइंड माई टॉपर कॉपी, नेवर. आई डिड नॉट राइट इवन अ सिंगल मॉक. मेरे पास टाइम ही नहीं था. मैंने 5 महीने ब्लाइंडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे हैं बिकॉज दे हेल्प्ड मी एवरी सिंगल डे. मैं टॉपिक करती थी, अगर मैंने ऑर्डिनल और कार्डिनल आज किया, आई विल पिक अप ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आई विल राइट एवरी सिंगल क्वेश्चन. दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. अगर मैं उसका आंसर नहीं फ्रेम कर पा रही हूँ, आई विल अगेन गो बैक टू द ओरिजिनल बुक दैट आई एम रेफरिंग और द नोट्स आई एम रेफरिंग फॉर दैट मैटर एंड आई विल सी कि ये मेरे नोट्स में अगर नहीं है, आई विल पुट इन एडिशन टू इट कि ये मैंने कवर नहीं किया है. जैसे इफ़ यू सी इन 2024 का पेपर आई गेस, उन्होंने वो वाला क्वेश्चन पूछा था कि गुड बैड न्यूट्रल, वो जो हम ब्लिस पॉइंट और सेशिएशन पॉइंट बनाते हैं, आई गेस यू रिमेंबर द डायग्राम, ऐसे गोल गोल वाला, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आया था 24 में. ओरिजिनली नोट्स में वो क्वेश्चन नहीं था. जो मैंने CSE के टाइम अपने नोट्स बनाए थे, मेरे माइक्रो के नोट्स में वो टॉपिक नहीं था. तो आई वेंट बैक टू द बुक एंड आई वाज लाइक कि कहीं ना कहीं तो दिया होगा, क्योंकि ग्रेड में पढ़ा होता है, याद होता है कि हमने ये वाला ऐसे डायग्राम पढ़ा था. बट अब आपको वहाँ पे इस तरह अगर याद आ रहा है कि ऐसे गोला करके हम डायग्राम बनाते थे, आप वहाँ वो आंसर नहीं लिख पाओगे. It's not possible to write a good answer on that even if you remember that we had to draw a circular diagram because you'll not be able to remember कि हम एक्सेस पे क्या पुट करते थे. वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम 5 नंबर 10 नंबर के लिए आधा दिमाग लगा देंगे कि हम आधे घंटे सोच ही रहे कि कौन सा डायग्राम बनाना है, पेपर छूट जाएगा. सो आई विल से कि प्रीवियस ईयर करो, यू विल गेट एन आइडिया व्हाट चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बुक और पर्टिकुलर नोट्स दैट यू आर रेफरिंग. जैसे मार्केट स्ट्रक्चर में CSE का डिमांड और IES का डिमांड टोटली सेपरेट है.
यू कांट प्रिपेयर CSE के माइंडसेट से कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर इन IES विल बी डेल्ट विद, नहीं होएगा। कभी भी आपको CSE में क्वेश्चन नहीं मिला है डिफरेंशिएट बिटवीन पीक लोड प्राइसिंग एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, विच इज़ अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ IES। बट अगर यू हैव टू राइट एन आंसर टू दिस, यू कांट जस्ट नो कि डेफिनेशन क्या है दोनों का, आपको उसके बियॉन्ड चीज़ें पता होनी पड़ेगी कि हाँ क्या एग्जाम्पल हम पुट कर सकते हैं, कौन सा डायग्राम हम पुट कर सकते हैं, कैसे दोनों के डायग्राम्स अलग होंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट कि मतलब प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, ब्लाइंडली डू इट। अगर 2 मॉक कम लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने आराम से अपनी वेबसाइट पे दे रहा है, वो ले लो, सर देते हैं वो कंपाइल्ड वाले, वो यूज़ कर लो, जो सोर्स रेफ़र करना है करो, बट प्रीवियस ईयर प्लीज़ मत छोड़ो। अब प्रॉब्लम क्या है, नया कुछ स्टार्ट हुआ है कि भाई आंसर दे दो प्रीवियस ईयर के, लगाओ पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल आंसर्स रटने नहीं है, लिखने हैं। प्रॉब्लम क्या है, इवन इफ आई सप्लाई यू विद द आंसर्स, प्रॉब्लम इज यू गाइज वोंट राइट। लिख लो आंसर्स। द डे यू स्टार्ट राइटिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि यहाँ बहुत गैप आ रहा है, हमें ये भी नहीं समझ आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा इंट्रो कैसे बनाना है, हमें समझ नहीं आ रहा कंक्लूजन कैसे बनाना है। ये बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं जो सबके साथ आती हैं। देखो इंट्रो के 3-4 ही तरीके होते हैं जिससे यू कैन इंट्रोड्यूस एन आंसर इन इकोनॉमिक्स। यू कैन स्ट्रेट अवे राइट द डेफिनेशन विच इज़ द सेफेस्ट एंड द मोस्ट यूज्ड मेथड। अगर पीक लोड और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग एक्सेप्ट द डेफिनेशन टू बिगिन विद। आप वो डेफिनेशन लिखो, उसके बाद यू पुट इन एन एग्जाम्पल, उसके बाद यू पुट इन अ ग्राफ एंड यू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राफ। कंक्लूजन में बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू से हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द रियल वर्ल्ड, और यू कैन गिव एन एग्जाम्पल कि हाँ अभी इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होता है, या अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम वीम कुछ दिमाग में आ जाए या इकोनॉमिक सर्वे में कोई इनपुट मिल जाए, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इन पर्टिकुलर, इसमें क्या ही इनपुट लोगे इकोनॉमिक सर्वे से, लेकिन इन जनरल टेलिंग यू कि रियल वर्ल्ड से रिलेट करके इफ़ यू राइट द कंक्लूजन, दैट इज़ अ बोनस। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा वर्क करता है, उससे नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, बिकॉज दे फील कि आपका पर्सपेक्टिव इतना ब्रॉडेंड है कि यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट दैट थ्योरी व्हेन इट कम्स टू द रियल वर्ल्ड, सो दैट गिव्स यू एन एज। सो देखो कंटेंट सबको सेम आता है, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू प्रेजेंट इट दैट मेक्स योर आंसर लुक डिफरेंट। वहाँ पे 20 नंबर एंड वाले डिफर करते हैं कि किसी को 100 मिलता है, किसी को 120 मिलता है, 120 वाले का सिलेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। सो बस इतना कर लो। GE 1 में ट्रिक्स परेशान करता है फॉर पीपल, मेरे को भी करता है, अभी तक करता है। तो ट्रिक्स में आई विल से कि स्टिक टू द बेसिक बुक। सर गुजराती ही पढ़ाते हैं, गुजराती के अलावा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। एंड आई विल से वन एडवाइस फॉर GE 1, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस ऑफ GE 1, इट इज़ मोर देन ओके। प्लीज़ डोंट पैनिक अबाउट GE 1 कि GE 1 बहुत बचा है, मेरा टाइम सीरीज़ भी बचा है, मेरा ये भी बचा है, वो भी बचा है, इट्स फाइन। मैं टाइम सीरीज़ खुद छोड़ के गई हूँ, मैं आपको क्यों बोलूँगी कि कवर करो, मैंने नहीं किया, टाइम ही नहीं था मेरे पास। और मुझे लगा कि मैं उसके लेक्चर्स कवर करके उसका प्रेशर लेने में इनफैक्ट चीज़ें बेकार कर दूँगी। तो मुझे ये था कि आई विल डू 4, इफ़ देर आर से टोटल ऑफ 20 टॉपिक्स आई हैव टू कवर फॉर ट्रिक्स, आई वॉज ओके विथ कवरिंग 15 एज लॉन्ग एज आई डोंट मेक अ मिस्टेक इन अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस ऑफ दोज 15। दैट शुड बी योर टारगेट। आप अगर 180 नंबर का, 160 नंबर का भी पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो GE 1 में, आप आराम से उसमें भी 80-90 स्कोर कर सकते हो इफ़ यू हैव रिटन दोज 160 वेरी गुड। तो बचे हुए 40 मार्क्स को चेज़ मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग ध्यान नहीं रखते इस बात का, बट हम पूरा पेपर 200 नंबर का कच्चा पक्का प्रिपेयर कर लेंगे रादर देन हैविंग अ सॉलिड होल्ड अबाउट ओवर 150 मार्क्स। That is gonna give you better score than covering entire 200. So please don't panic about GE 1, and for everybody who has to test their speed, please attempt at least one full length of GE 1. प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट करना है, 2025 का पेपर अटेम्प्ट कर लो, मॉक अटेम्प्ट करना है, मॉक अटेम्प्ट कर लो, कुछ भी अटेम्प्ट कर लो, बट एक बार उसका फुल मॉक दे के जाना, बिकॉज वहाँ आपको पता लगेगा कि ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, हम लिखे जा रहे हैं 3 घंटे से लेकिन ये पेपर नहीं ख़त्म हो रहा। वहाँ ये होता है। कैलकुलेटर सर बताते हैं, साइंटिफिक वाला जो भी अलाउड होता है, मेरे से वो गलती हुई है, प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक ऑल्सो, जस्ट टेलिंग यू माई मिस्टेक। सेंटर में जब घुसो, उनको ऐसे बड़ा सा ऐसे करके कैलकुलेटर अपना दिखा देना कि ये मैं अपने साथ अंदर लेके जा रहा हूँ या लेके जा रही हूँ, बिकॉज हो सकता है सबका सेंटर दिल्ली ना हो। अगर तो दिल्ली सेंटर है तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज एवरीबडी सेंसिबल इनफ टू ब्रिंग अ कैलकुलेटर। मेरे सेंटर पे कोई भी बच्चा कैलकुलेटर नहीं लाया था, आई वाज द ओनली वन हु टुक अ कैलकुलेटर विद मी। पूरे सेंटर की बात बता रही हूँ, एंड
they took away my calculator in the middle of the paper and returned it to me after 40 minutes when I was attempting a question on Leontief. And I was not able to complete 40 marks of my GE1 paper because of that entire panic that they created and took away my paper, like calculator, for 40-45 minutes. So time extra तो कोई भी नहीं देगा, but just make sure कि ये गलती हो चुकी है. तो when you enter, टीचर्स ना कई बार बहुत कैजुअली पास इन कर देते हैं आपको, हल्का फुल्का चेक किया, बोला जाओ. क्योंकि इंग्लिश के पेपर के पहले तो बहुत सॉलिड चेकिंग होती है क्योंकि वो फर्स्ट डे होता है, ये सेकंड डे होता है. बट मेन पेपर तो सेकंड डे शुरू होता है ना, उसमें वो एम ही निकाल देते हैं, उसमें दिक्कत हो जाती है. सो प्लीज़ बी केयरफुल विद इट कि पूरा उनको प्रॉपर दिखा दो कि दिस इज़ द कैलकुलेटर आई एम कैरिंग. और अगर उनको वो चेक करना हो कि वो प्रोग्रामेबल है कि नॉन प्रोग्रामेबल है, लेट देम डू इट एट द एंट्रेंस के में तो ऑलरेडी आधा पौना घंटा आप एक्स्ट्रा लेके चलते हो. अगर वो वहाँ टेस्ट भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज दे डोंट डिस्टर्ब यू इन द मिडल ऑफ द पेपर. इफ़ दे डू इट इन द मिडल ऑफ द पेपर, यू गो इन टू अ पैनिक जोन. वहाँ पे पेपर संभालना और माइंड संभालना बहुत टफ हो जाता है. बीन थ्रू दैट, सो प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक फॉर योर सेंटर. दिस इज़ एन एडवाइस फॉर GE1. अगर कोई क्वेश्चन होगा आई पिक इट अप इन द एंड. GE2, my scores are there on the Telegram channel for those people who don't know. I scored 80 in GE1. I scored 126 in GE2. I scored 103 in GE3 and I scored 110 in GE4. This is my score. And 53 in English and 49 in GS, total making up to 520 marks in mains. This is my score. So GS done, English done, GE1 done. This is paper, very lengthy paper but a very beautiful paper to attempt, very predictable paper to attempt. काफ़ी हद तक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिंक्ड आते हैं, कोई पैटर्न चेंज नहीं होता. ISLM को कैसे ही किसी और लैंग्वेज में कुछ और लिख सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल. बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड विद द टॉपिक्स ऑफ दिस पेपर. मैक्रो के प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ डू दोज टॉपिक्स वेरी डिलीजेंटली. ISLM शुड बी ऑन योर टिप्स. Classical should be on your tips. Classical, ISLM and Phillips curve. These three are the most important topics when it comes to macro. Please don't falter in these topics, especially Phillips curve. हम लोग Phillips curve में सिर्फ एक डेफिनेशन करके चले जाते हैं या वो करके चले जाते हैं कि 1972 के पहले Phillips curve ऐसा था, 1971 के बाद ऐसा हो गया. ये हमारा Phillips curve है. आप एक बार क्वेश्चंस देख के देखना, इससे नहीं लिखे जाते. You will have to read a lot of content on Phillips curve. क्योंकि अगर आप वो पढ़ोगे नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑफ फिलिप्स कर्व. यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट विद दिस डायग्राम. आपको और पढ़ना पड़ेगा कि मॉनिटरिस्ट क्या बोलते थे, कि फिलिप्स कर्व इस समय क्यों फेल होता था. यू हैव टू रीड द व्यू पॉइंट ऑन फिलिप्स कर्व ऑफ एवरी पर्सन. केन्स का अलग व्यू पॉइंट है, मॉनिटरिस्ट का अलग है, उनके बाद वालों का अलग है. तो आपको वो सारे अलग अलग पता होने चाहिए कि इसने ये बोला, किसी ने बोला कि शॉर्ट टर्म में फेल हो जाएगा, किसी ने बोला दोनों टाइम फेल हो जाएगा, किसी ने कहा दोनों टाइम वर्क कर जाएगा. एग्जैक्टली पता होना चाहिए ये. दिस इज़ अ टॉपिक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू फॉल्टर एंड ये हर साल आता है. सो इफ़ यू लीव दीज टॉपिक्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दोज 28 or 30 हु गो टू इंटरव्यू. ES में बेस्ट पार्ट इज़ दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू CSE. बिकॉज CSE में बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ES में थ्योरेटिकल आते हैं. ES बहुत ज़्यादा एनालिटिकल नहीं पूछता. दे जस्ट टेस्ट योर प्लेन सिंपल नॉलेज, बट यू हैव टू बी वेरी गुड विद द टॉपिक्स दैट दे से. फिलिप्स का इतना बड़ा बड़ा सिलेबस में लिखा है, बट वी टेंड टू की डेफिनेशन तो हमें पता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उससे नहीं आएगा आंसर. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक फॉर मैक्रो. नेशनल इनकम 3 ही तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. प्लीज़ बी थरो विद इट. राइट आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस एंड रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन. इट्स अ बोनस 15 मार्क्स दैट यू गोना गेट इन GE2. प्लीज़ डोंट मेक अ मिस्टेक ऑन दैट. ठीक है, 15 नंबर तो तुम्हें नेशनल इनकम दे जाएगा. कुछ भी नहीं आता, वो क्या पूछ लेंगे भाई, देखो खुद सोच के देखो क्या पूछ लेंगे. या तो तीनों मेथड्स का डिफरेंस पूछ लेंगे, या तीनों मेथड्स का कंपैरिजन पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे कि वो तीनों मेथड सेम आंसर कैसे देते हैं, जो कई बार वो पूछ चुके हैं. उसके बाद में और क्या पूछ लेंगे कि वाई इज नेशनल इनकम नॉट अ सफिशिएंट मेजर. नेशनल इनकम एंड्स देयर इज़ नो अदर टॉपिक दे कैन आस्क यू. बट ये 4 टॉपिक्स के लिए हाउ मेनी डेज यू नीड? 2 days मैक्स. But 2 दिन can give you 15 marks. That's a lot. Please don't falter on these. Financial markets, again a brilliant topic. This much effort, this much predictability. You're getting my point? तुम्हें कितने नंबर फाइनेंशियल मार्केट से मिल जाएंगे? चलो 15 और ले लो. ठीक है, उसके बाद अगला छोटा टॉपिक कौन सा है? इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कर लो. WTO, IMF, उनकी वेबसाइट खोलो. इतना ब्रिलियंटली प्रिपेयर्ड आंसर मिलेगा कि मेहनत ही नहीं करनी. एज इट इज़ वहीं से उठा लो. वर्ल्ड बैंक क्या काम कर रहा है उन्होंने दिया हुआ है,
बस तुम्हें इतना एडिशनल एफर्ट क्या करना है कि इंडिया में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं. योर आंसर ऑन वर्ल्ड बैंक इज़ डन. इस बार उन्होंने पूछा था कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं. हमने वो लिखे, आई ड्रू अ सर्कुलर डायग्राम लाइक दिस. ठीक है, ऐसे वर्ल्ड बैंक के वो लिख दिया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WB ग्रुप ऐसे लिख दिया था, और यहाँ पे ना ऐसे ऐसे करके बना दिए थे कि ये इसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं. ठीक है, उसके बाद बिगैन अ वन लाइनर डिस्क्रिप्शन फॉर ईच ऑफ द इंस्टीट्यूशन. एंड मैं अपना बताऊँ तो आई यूज़ टू अटेम्प्ट पेपर लाइक दिस. मैं पैटर्न दिखाती हूँ कि हाउ आई यूज़ टू राइट माई आंसर्स. सो जैसे मैंने इंट्रो लिखा. ठीक है, इंट्रो में तब बुला 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 कुछ भी जो भी मैंने इंट्रो स्टार्ट किया. ठीक है, उसके बाद आई पिक अप अ कीवर्ड फ्रॉम द टॉपिक. सपोज देव आस्क्ड मी कि वर्ल्ड बैंक के इंस्टीट्यूशंस कौन से, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के. आई विल राइट वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस, देन आई विल गिव इट अ अंडरलाइनिंग और समथिंग, देन दिस कम्स माई डायग्राम. ठीक है, ऐसे ऐसे एक डायग्राम आएगा. उसके बाद आई विल मेंशन कि ये वाला पहला इंस्टीट्यूशन है, आई विल गिव अ लाइन टू इट कि यहाँ पे मैंने उसका डिस्क्रिप्शन लिखा. उसके बाद मैं अलग से पॉइंट मैंने यहाँ से एग्जाम्पल लिख के ऐसे ऐसे लिख देती थी, दिस प्रोजेक्ट डूइंग इन इंडिया. सो एग्जाम्पल, और फिर सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, तो एग्जाम्पल अलग फोकस हो जाता था बिकॉज आई वुड चेंज दी अलाइनमेंट. तो अगर उनको नहीं भी देखना होगा ना, तब भी उनको मेरे कॉपी में दिख जाएगा कि इसने एग्जाम्पल लिखे हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट. सो दैट इज़ हाउ यू अटेम्प्ट इट. उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो वील पुट दिस 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 एज अ कंक्लूजन. एक आध दो कीवर्ड्स कंक्लूजन में अंडरलाइन कर दो, एक आध दो कीवर्ड इंट्रो में अंडरलाइन करो. सुंदर सा आंसर का प्रेजेंटेशन हो जाएगा एंड यू विल गेट गुड स्कोर. बिकॉज देखो, डायग्राम डाल देते हो वैसे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे GS की बात बताऊँ, इन 2025 का पेपर आई हैव ड्रॉन डायग्राम इन GS का पेपर इन एटलीस्ट आई गेस 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आई रोट. सो मेरी कॉपी बहुत सुंदर थी. मतलब आफ्टर आई कंप्लीटेड माई पेपर, ऐसे वही कुछ 4-5 मिनट पहले पेपर कंप्लीट हो गया था, मैं अपनी कॉपी खुद ही उठा के देख रही थी. मैंने कहा सुंदर लग रही कम से कम. मतलब आई हैड रिटन वेल प्रेजेंटेड आंसर्स विद लॉट्स ऑफ डायग्राम्स. सो आई वॉज माई सेल्फ लाइकिंग माई कॉपी. ओके, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग कॉपी टू चेक. मतलब मैंने इंडियन इकोनॉमी के पेपर में इतने टेबल्स बनाए हैं, इतने डायग्राम्स बनाए हैं, मैंने लिबरली बनाए, बट उसका बेनिफिट मिलता है. मतलब कभी वो नुकसान नहीं देगा आपको. जैसे वो नहीं लिखते कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखने हैं. सपोज उन्होंने नहीं पूछे, लेकिन उससे ज़्यादा आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. जैसे सपोज वो नहीं होता अकाउंट फॉर दिस 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 दिस, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं कई बार. उसमें आप क्या लिखोगे? फीचर्स लिख सकते हो, मेरिट्स लिख सकते हो, डीमेरिट्स लिख सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकते. बट कभी कभी होता है कि उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं पूछा है कि मेरिट्स, बट आपका मन हो रहा है बताने का. सो हाउ डू यू टेल इट? यू अगेन ड्रॉ डायग्राम्स. यहाँ पे ऐसे मेरिट बना दो, यहाँ ऐसे डीमेरिट बना दो, उसको ऐसे ऐसे बना दो, 4-4 लिख दो बस. इतनी सी स्पेस में बता दिया, डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखना पड़ा, टाइम भी बचा, एंड यू आर एबल टू कन्वे व्हाट यू वांटेड टू कन्वे. सो ये सब ना वहाँ पे याद नहीं आता अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस इट अ कपल ऑफ टाइम्स, कि डायग्राम बना के देख लो. जैसे मैंने तो अलग अलग वो नहीं होता जो वर्ड पे आता है, वेर यू आर एबल टू पुट इन, वो जो डायग्राम वाले फिगर्स आते हैं वो ऐसे ऐसे डायग्राम भी बताते हैं. ऐसे बनाओ, फिर ऐसे चले जाओ, ऐसे 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 अलग अलग उनके वो आते हैं वर्ड पे. खैर मैंने 1-2 ही देखे थे, इतना भी फ्री टाइम नहीं था ये सब प्रैक्टिस करने का. लेकिन जस्ट टेलिंग कि इस तरह के कुछ भी इनोवेटिव यू कैन ड्रॉ. ठीक है, बाकी जैसे अब टेम्पल है, टेम्पल आता है, तो टेम्पल में तुम्हें एक मोटा मोटी पता होना चाहिए कि हाँ द्रविड़ा आएगा तो हम ऐसे ऐसे बना देंगे. बहुत सिंपल ड्राइंग्स होती हैं उसकी. जैसे आई रिमेंबर द्रविड़ा में ऐसे होता है, यहाँ पे वो एंट्रेंस दिखाते हो आप, यहाँ पे आपने मंडप ऐसे करके दिखा दिया, यहाँ पे आपने पिलर्ड हॉल दिखा दिया, यहाँ अगर दिखाना है तो आपने गोपुरम दिखा दिया. यू लेबल इट कि ओके दिस इज़ गोपुरम. सो ऐसा कोई वहाँ पे PhD नहीं करनी है इन डायग्राम्स, बट दीज डायग्राम्स डिफ्रेंशिएट योर आंसर्स. सो दे हेल्प यू. तो अगर आप GS वगैरह में भी थोड़ा बहुत ड्रॉ कर सको, इट विल बी टू योर बेनिफिट. इंस्टीट्यूशंस हो गया, फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया, मैक्रो हो गया. उसके अलावा पे इंटरनेशनल ट्रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक टू लाइक डू. थ्योरीज तक का पार्ट अच्छा लगता है, BOP में थोड़ी कन्फ्यूजन शुरू होती है मेरी पर्सनल लेवल पे. प्लीज़ डू द अप्रोचेज ऑफ BOP नाइसली. इलास्टिसिटी अप्रोच, अब्जॉर्प्शन अप्रोच, मतलब आपके आंसर्स प्रिपेयर होने चाहिए. जैसे इलास्टिसिटी है, 2 पेज का बना लो कि इलास्टिसिटी अप्रोच ये है, अब्जॉर्प्शन ये है, मॉनिटरी ये है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो. एंड मोमेंट पे ना वहाँ कन्फ्यूजन होता है, याद नहीं आता कि कौन सा अप्रोच क्या बोल रहा था. तो जस्ट प्रैक्टिस इट अ कपल ऑफ टाइम्स. मंडल फ्लेमिंग आना ही आना है. परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी का डायग्राम कैसे बनेगा, इम्परफेक्ट कैसे बनेगा, नो कैसे बनेगा, सब पता होना चाहिए. मतलब दीज आर टॉपिक्स दैट यू कैंट फॉल्टर इन. अब जैसे तुम लोग देखो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, यू विल सी HO इज़ देयर फेवरेट.
एवरी ईयर अ क्वेश्चन ऑन एचओ कम्स. एचओ में भी हर साल अलग डायमेंशन पूछते हैं. दे विल आस्क यू लियोंटिफ पैराडॉक्स, दे विल आस्क यू सैमुअल्सन, स्टॉपलर सैमुअल्सन वाला पोर्शन, दे विल आस्क यू फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, दे विल आस्क यू रिबिन्स्की, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, बट वन क्वेश्चन ऑन एचओ इज फॉर श्योर. सो आपको पता है कि एचओ इज योर लॉटरी 15 मार्कर. डू इट गुड. मतलब यू कांट अफोर्ड टू लीव एचओ, कि हम सारी थ्योरी करके गए, हम रिकार्डो ग्रेविटी भी करके गए, लेकिन हम एचओ छोड़ के गए हैं. सो दैट्स अ मिस्टेक. लीव ग्रेविटी इफ यू कांट डू ग्रेविटी, इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर ग्रेविटी. एक बार आया ग्रेविटी, बट वो हर साल आ रहा है, एंड देन यू से कि हमने तो पूरा अच्छे से पढ़ा था. वो नहीं चलता. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्यों वो दे रहा है यूपीएससी, तो तब तो समझना पड़ेगा. सो दिस इज फॉर GE2. GE2 में द थिंग्स विच वर्क, यू कैन ड्रॉ डायग्राम्स, राइट आंसर्स गुड, practice the description of graphs, because ISLM में कई बार होता है, suppose you get these two sides to write your paper. Thing is you have drawn ISLM here, and कभी कभार होता है वो दो सिनेरियो आपसे पूछते हैं कि सपोज उन्होंने एक में पूछ लिया वर्टिकल IS एंड एक में उन्होंने पूछ लिया वर्टिकल LM. सो यू ऑल्सो नो कि हमें दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, एक वर्टिकल IS का, एक वर्टिकल LM का. सो आपको अपना स्पेस कंस्ट्रेंट पता है कि मुझे 2 पेज मिले हैं. सो योर डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस शुड एंड इन दिस मच एंड योर डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस शुड एंड इन दिस मच. यहाँ आपका कंक्लूजन आएगा, यहाँ आपका इंट्रो आएगा. प्रॉब्लम क्या है, ये ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी ग्राफ का डिस्क्रिप्शन चल रहा होगा. ये होता है एक्चुअल पेपर में, ये पक्का होगा. तो जस्ट टेलिंग यू, नो हाउ टू कंडेंस इट. अगर आपको 2 डायग्राम लिखने हैं, इट्स फाइन इफ यू डोंट राइट कि IS रेफर्स टू ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट विच गिव यू इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट. इवन इफ यू डोंट राइट इट, इट्स फाइन. You can begin directly from, we have a downward sloping IS curve and an upward sloping LM curve in the normal case, but here given this is a vertical IS, we have an upward sloping LM curve. If this changes, this is the change which happens. Address it on the spot. प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे, जब एक्चुअल डिस्क्रिप्शन देना है जिस पे मार्क्स हैं, वी विल नॉट हैव स्पेस फॉर इट. सो मैनेज योर स्पेस वेरी इफेक्टिवली, एंड स्पेशली फॉर GE1 उसका जो पेपर पैटर्न है एंड जो बाकी GS का पेपर पैटर्न है, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. उसमें स्पेस बहुत आराम से देखना. आई विल टेल यू दिस, जो GE2 और GE3 का पेपर है उसमें कई क्वेश्चंस में यू विल गेट 3 साइड्स टू राइट, ठीक है. बट जो GE4 का पेपर है, यू हैव ओनली 2 साइड्स पर क्वेश्चन. आई हैव डन दिस मिस्टेक. GE2 लिखा, GE3 लिखा, आदत थी कि हाँ इतने मार्क्स का क्वेश्चन है, इस पर तो 3 साइड आएंगे. मैं FRBM पे क्वेश्चन अटैम्प्ट करी थी GE4 का, एंड मैं लिख रही हूँ, मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता था, वेरी वेल प्रिपेयर्ड. आई स्टार्टेड माई पेपर विद इट कि थोड़ा फ्लो अच्छा रहेगा. मैं यहाँ तक आ गई और मेरा अभी पॉइंट्स बचे हैं, मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे और मैंने कंक्लूजन भी नहीं लिखा, एंड आई रियलाइज माई स्पेस इज गॉन. आई हैव ओनली 2 शीट्स फॉर दैट आंसर. स्क्रूड. बहुत अच्छा शुरू किया था, बहुत डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, कंक्लूजन नहीं लिखा है उस आंसर में. मार्क्स कम मिले होंगे ना, क्या बदल लोगे, उस दिन कुछ नहीं बदल सकते. सो बी वेरी केयरफुल विद इट. GE4 में हर पेपर पे 3 साइड नहीं मिलते, उसमें आंसर्स लिखने के लिए 2 मिलते हैं. तो बी वेरी केयरफुल विद इट, क्योंकि हम लोग वो 2 और 3 की मेंटालिटी में रहते हैं. वी फिक्स अ पैटर्न इन आर हेड. GE1 का पेपर पैटर्न अलग है, GE4 में पेजेस अलग मिलेंगे, और GE2 GE3 पूरा सेम होता है. बी वेरी केयरफुल विद दिस. मैंने गलती करी, मत करना. इट कॉस्ट यू योर मेंटल पीस ऑन द फाइनल डे कि एक ही क्वेश्चन तो अच्छे से आता था, वो भी चला गया. इस तरह का फील आता है, वो अच्छा नहीं लगता फाइनल डे. तो प्लीज़ बी केयरफुल विद इट. GE3 वेरी ब्यूटिफुल पेपर, वेरी स्मॉल पेपर टू कवर. It's a bonus paper in entire IES. I feel it's that paper which gives you 100 marks without even putting that 100 marks worth effort. Please do it very good. SEEA. Please prepare this topic wholeheartedly. This is a very, very, very important topic. If you don't find it sufficient in the notes or anything, please refer to IGNOU का material for environmental eco. It's very good. ये बहुत प्यार से उन्होंने दिया है. इस टॉपिक को रट्टा मार के जाना और 2 पेज इस पे बना लो और इसको प्लीज़ पढ़ के जाओ. किसी ना किसी लैंग्वेज में ये टॉपिक आएगा ही आएगा. प्लीज़ डू इट. ये टॉपिक बोनस है. प्लानिंग का टॉपिक इज़ योर बोनस. प्लीज़ डू इट गुड. 4 टॉपिक है उसके अंदर. एक 2 पन्ने के नोट्स बना लो, 2 पन्ने के. एंड प्लीज़ राइट एग्जाम्पल्स इन एवरी टॉपिक. जैसे आई रिमेंबर कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में एक झारखंड के किसी विलेज का एग्जाम्पल मैंने ढूंढा था. एक बेटर लाइव्स इंडिया या बेटर पीपल इंडिया कुछ ऐसे करके, हाँ बेटर, हाँ ऐसा कुछ है ना. मैंने उसमें देखा था. तो दे हैड गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ, उसमें सिविल सर्वेंट्स के भी एग्जाम्पल्स आते हैं.
बट उसमें एक एग्जाम्पल मुझे झारखंड के किसी विलेज का मिला था, वेयर दे हैव डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एंड पीपल सिट वंस इन अ वीक ऑन संडे एंड एवरीथिंग एंड दे टेल कि हमें अब इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, हमारे विलेज को इस तरह की नीड है। तो ये उनका डिसेंट्रलाइज का मॉडल था जो काफ़ी इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। सो दिस वॉज वन गुड एग्जाम्पल इन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग विच यू कैन मैंशन। सो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स ढूंढो, क्योंकि लोग ये एग्जाम्पल्स नहीं लिखते। हम लोग सोचते हैं कि ये तो हर बच्चा कर रहा होगा, प्रॉब्लम इज़ वहाँ हर बच्चा करता भी नहीं, और जो बच्चा करता भी उसको याद ही नहीं रहता कि लिखना है। सो प्लीज़ डू दिस। ये सब टॉपिक्स मार्क्स फेचर हैं, इन सबको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल इको, वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम्स टू एड्रेस। इंडस्ट्रियल इको में देयर वाज अ सेट ऑफ टॉपिक्स विच आई हैड प्रिपेयर्ड वेरी डिलीजेंटली। जैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मुझे पता होना चाहिए, बेन का लिमिट प्राइस थ्योरी मुझे पता होना चाहिए, सर्ट एंड मैच का बिहेवियरल थ्योरी मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद मार्केट कॉन्सेंट्रेशन में आई शुड बी रियली रियली गुड विद ऑल द रेशियोज़। देर आर 5-6 रेशियोज़ आई इवन मैंशनड ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप कि ये रेशियोज़ आपको पता होने चाहिए कि दीज आर द रेशियोज़। सो डू देम रियली गुड। इंडस्ट्रियल में 5-6 ही टॉपिक्स हैं विच आर मोर रिपीटेड दैन अदर्स, सो प्लीज़ कवर दीज एंड ऑल्सो कवर जो भी प्रीवियस ईयर में टॉपिक्स पूछे गए हैं, जो वो सारे टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग की फर्म्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड इनोवेशन का पाथ और ये सब वाले कुछ टॉपिक्स इंडस्ट्रियल इको के हैं। एंड हाँ, G3 में एक न्यूमेरिकल आएगा डुओपोली पे, ठीक है, वो 15 नंबर बोनस है। प्लीज डू इट, इट फेचेज यू एग्जैक्ट 15। दैट्स अ ब्रिलियंट टॉपिक टू अटेम्प्ट। डुओपोली तो इतना पढ़ के आए होगे G1 में कि न्यूमेरिकल हो जाएगा, एंड ईजी न्यूमेरिकल आता है, टफ भी नहीं आता। तुम कभी G3 के पुराने पेपर्स उठा के देखना, सिर्फ डुओपोली के लाइन से न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो, सबके आंसर निकाल लोगे, इतना ईजी आता है। तो डू दिस। ISLM का एक 15 मार्कर आएगा पेपर 2 में, डू दैट, तो 30 मार्क्स यहाँ से भी निकलते हैं। एंड इस 30 में अगर चलो उन्होंने नहीं भी पूरे दिए बिकॉज उनकी भी कंसंट्रेशन है, तो भी कितने मिल जाएंगे, 25 नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर न्यूमेरिकल सही करके आए हो तो। मैं तो शुरू ही न्यूमेरिकल से करती थी, गिव मी अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि 15 तो पक्के हुए, मतलब एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको लगता तो है कि सही अटेम्प्ट किया होगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स आर अ बोनस फॉर GE3, सो प्लीज़ डू दैट न्यूमेरिकल। GE3 में एक एडवाइस और फॉर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, जो मैं इनोवेशन और ये सब वाले टॉपिक्स आपको बता रही थी, प्लीज़ रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्शन एंड राइट G&D का थ्योरीज इन दैट पेपर, दैट्स गोना हेल्प। मैंने शुम्पीटर इतना लिबरली कोट किया है, हर इनोवेशन के आंसर में मैं शुम्पीटर डाल के आई हूँ, पर मुझे लगता है उनको भी लगा होगा कि हाँ चलो इसने एक पेपर का सामान उठा के दूसरे पेपर में यूज़ किया है। आप समझो, दैट गिव्स देम दैट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ बच्चे को होलिस्टिकली पता है कि मुझे इतना इकोनॉमिक्स कवर करना है। दैट पर्सन इज नॉट स्टडिंग इट पेपर वाइज, दैट पर्सन इज स्टडिंग इट एज इकोनॉमिक्स एज अ होल। सो वो बेनिफिट मिलेगा आपको, तो वो करके देखना। GE4 वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स टू आस्क, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है कि क्या करना है। 4 चीज़ें करी थी, ठीक है, नोट्स रेफ़र किए थे जो CSE के टाइम पे बनाए थे, मैंने CSE की कोचिंग भी यहीं से करी थी, बट जो भी मैंने नोट्स बनाए थे कुछ टॉपिक्स के आई रेफर्ड, बट मोस्टली आई डिड इट फ्रॉम मिशन पुरी। दैट वाज माय फेवरेट बुक टू रेफर टू, मिशन पुरी फॉर स्टैटिक। उसके अलावा एक करंट अफेयर की मैगजीन्स कर लो, उसके अलावा बजट एंड सर्वे कर लो। ये इकोनॉमिक सर्वे मैंने अपने हर एक आंसर में कोट किया, एवरी सिंगल आंसर इन GE4। मैं इतना अच्छे से सर्वे करके गई थी कि मुझे सर्वे में हर टॉपिक पे एक पॉइंट पता था कि सर्वे ने इस टॉपिक पे इंडस्ट्री पे ये बोला है इस बार। तो दैट शुड बी योर ग्रिप ऑन इकोनॉमिक सर्वे, इट शुड बी रियली ऑन योर टिप्स, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट एंड नो लेवरेज ऑन दैट। वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दैट फेचेज यू मार्क्स। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम शुड बी ब्लाइंड। एग्रीकल्चर उठा लो तो एग्रीकल्चर में इन द प्रेजेंट केस यू शुड बी एबल टू लिस्ट 16-17 ऑफ द स्कीम्स, मतलब टिप्स पे होनी चाहिए। इंश्योरेंस के, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पे ये स्कीम है, फार्म प्रोडक्टिविटी के लिए ये स्कीम है, फूड प्रोसेसिंग के लिए ये स्कीम है। अब वो इस बार वो आया था धन धान्य योजना इन बजट, बहुत कम बच्चे लिख के आए हैं। एवरीबडी स्टक ऑन PM किसान, पुरानी हो गई है। धन धान्य इज लेटेस्ट, राइट दिस। अवेयर भी तो रहना है, यू कांट बी कोटिंग 2020 का नोट्स एंड बी लाइक ओके हाँ वी विल स्टिल वर्क विद इट इन 2025, इट्स नॉट पॉसिबल। अपडेट तो करना पड़ता है, नो चॉइस। बस इन चारों को ऐसे लिख लो एंड सिर्फ ये चार सोर्सेस करो, कुछ मत करो GE4 के लिए। प्रॉब्लम विद GE4 इज कि कुछ डिफाइंड नहीं मिलता, तो वी टेंड टू इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। तो हम लोग रोज़ एक टॉपिक GE4 का उठाओ एंड यू विल बी थ्रू विद इट इन अ मंथ एंड यू वोंट इवन रियलाइज कि GE4 हो गया।
GE4 की बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है। कभी भी मेरे को नहीं समझ में आया कि GE4 के लिए हम 10 दिन रखेंगे, 10 दिन में कर ही नहीं पाओगे। देयर इज सो मच मटीरियल टू रीड इन GE4 कि आप 10 दिन में टॉपिक ही नहीं कर पाओगे। चाइल्ड लेबर करोगे 2-2 3-3 दिन, यू कैन जस्ट कीप ऑन रीडिंग चाइल्ड लेबर, क्योंकि GE4 इंटरेस्टिंग लगता है। देखो फैक्ट भी फैक्ट, GE4 पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि चाइल्ड लेबर एक तो पहले हिस्ट्री से शुरू करोगे कि ऐसे ऐसे था, फिर गवर्नमेंट ये लेके आई, अभी हम पेंसिल पोर्टल और ये सब लेके आ रहे हैं, हम अभी तक वर्क कर रहे हैं, अभी इतना परसेंटेज हो गया है, हमने स्टार्ट इतने परसेंटेज से किया था, सेंसस में इतना परसेंटेज था। आप देख लो कंटेंट कितना है टू रीड, फिर तो 2-3 दिन यही होता रहेगा। तो दैट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। फिक्स वन टॉपिक अ डे एंड फिनिश इट ऑफ, आराम से हो जाएगा। GE4 में अटेम्प्ट के लिए बताऊं तो GE4 का पेपर भी इसी तरह होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, नथिंग न्यू। बट GE4 में यूज़ फ्रेजेस, गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस उठाओ, ही गिव्स वेरी गुड कोट्स दैट यू कैन यूज़ एंड यूज़ इट इन योर कंक्लूजन्स। विकसित भारत 2047, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, दीज आर योर कंक्लूजन्स, दीज आर योर कंक्लूजन्स। कुछ नहीं अलग से बनाना होता। मैंने प्राइम मिनिस्टर का देखा था, वो था सहकार से समृद्धि। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स जो अभी मुझे दिमाग में आ रहे हैं। आई मेड अ A4 शीट, उस पर मैंने सारे लिख दिए थे एंड आई रेड देम वन डे। जो बीच का गैप होता है उसमें ये पढ़ के गई थी कि मेरे कंक्लूजन्स हैं ये। कोऑपरेटिव, फेडरलिज्म, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव में क्या लिखोगे? यही लिखोगे, सहकार से समृद्धि, ठीक है। अब जैसे एक वो था फेडरलिज्म के लिए, ही हैड यूज्ड अ फ्रेज टीम इंडिया, कि अब हम स्टेट्स एंड सेंटर अलग अलग नहीं है, वी आर टुगेदर वर्किंग एज अ टीम। दिस इज व्हाट ही यूज्ड फॉर फेडरलिज्म। यू हैव टू यूज दिस, लिबरली यूज दिस। ये आपको उनकी स्पीचेस में मिलेगा। इवन इफ यू फिगर आउट कोट्स ऑफ PM स्पीचेस, यू विल गेट इट ऑन गूगल ऑल्सो, सो यू कैन सर्च इट फ्रॉम देयर, आराम से मिल जाएगा। यूज देम एज कंक्लूजन्स, दे आर वेरी इफेक्टिव मार्क फेचर्स। सो ये आप कर सकते हो फॉर GE4। बाकी यार मेरे को मेनली टिप्स ही डिस्कस करनी थी कि कैसे आप बेटर पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि बुक्स एंड स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट हर टॉपर की सेम होती है, कुछ अलग नहीं होता। इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता देती हूँ। इंटरव्यू फॉर मी वॉज, बताया भी होगा आपको कि हम लोग के में 4 फीमेल्स बैठी थी इस बार, विच वॉज द फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड कि वी डिड नॉट हैव अ मेल बोर्ड मेंबर। आई हैव स्कोर्ड 138 in my interview. Which is a decent score. I guess it's the 3rd or the 4th highest that I got, but interview ka score made me realize that interview balances your score out, and interview ka score is very important for a rank. वैसे तो IES में rank doesn't really matter because you enter the same service. All 11 and 12 of us are gonna get into the same service. But अगर आपका category वाला है तो थोड़ा issue होता है in general category, because in general category you had 3 or 4 seats. So 3-4 seats means that your selection depends on if you are in the top 4 or not. So rank वहाँ पे important हो जाता है for fetching good marks. इस बार का आप कट ऑफ देखो, it's 648, which is a very 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 tough score to get. It's one of the highest cut-offs that has been in IES so far. So interview के लिए it was a very cordial interview. Your masters का project is very important for your interview. Your nearly 40 to 50% of your interview is going to be based on what you've done in masters, the project, the dissertation or whatever you've done. It's very important. Please do that very, मतलब अभी अगर आप masters के phase में and you're doing it, please put your heart and soul to it and do it good, because that will be asked in your final paper. तो वहाँ पे please laxity मत करना, वो अच्छे से करके जाओ। मास्टर्स का प्रोजेक्ट इज़ वन थिंग, बाकी माइन वॉज अ कोर इकोनॉमिक बेस्ड इंटरव्यू, कोर पर्सपेक्टिव बेस्ड इंटरव्यू। मेरे से बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नॉलेज उन्होंने नहीं पूछा था। दे आस्क्ड मी इफ़ वी नीड अ WTO 2.0, दे आस्क्ड मी कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स इन सोलर पावर दैट वी आर डूइंग इंटरनेशनली। दे आस्क्ड मी अबाउट ग्रीन, बहुत कुछ पूछा था, ग्रीन फाइनेंसिंग, ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ग्रीन वो पूछ सकते थे, सारा ग्रीन पूछा था, बिकॉज माई प्रोजेक्ट वॉज ऑन सोलर पावर, सो दे थॉट दैट आई विल बी इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट टॉपिक। उन्होंने इंडिया के बारे में भी मुझसे पूछा था कि नॉर्थ एंड सदर्न डेवलपमेंट में डिस्पैरिटी क्यों है इंडिया में। They asked me why is youth investing in stock markets these days and looking it as a mechanism to probably double or triple their money. So
बेसिकली वो आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव चेक कर रहे हैं. सो प्लीज़ डोंट बी वेरी अफ्रेड इफ़ यू आर आस्क्ड वेरी पर्सनल क्वेश्चंस और वेरी ग्रिलिंग क्वेश्चंस इन योर इंटरव्यू कि हेट्रोस्केडास्टिसिटी और मल्टीकोलिनियरिटी में क्या है. वो इंटरव्यूज़ में होता है, हम भी मॉक देते थे, ये सब आता था. एंड वी यूज टू बी स्कैर्ड कि यार ये वहाँ कैसे बोलेंगे कि इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है. बट फाइनल इंटरव्यू एंड मॉक इंटरव्यू आर टू वेरी सेपरेट थिंग्स. कुड भी कि वो पूछ लें, आई एम नॉट सेइंग कि वो पूछ ही नहीं सकते, भाई वो कुछ भी पूछ सकते हैं. लेकिन ये है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो. अगर नहीं बोल पा रहे बोल दो सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई विल गो बैक एंड रीड, एंड दे आर फाइन विद इट. It's a very cordial interview. I remember sitting outside the interview room, just telling you an anecdote or something. I remember sitting outside the interview room and they rang the bell and the person took me inside. Okay, this is the interview room. I see 4 charismatic ladies sitting in front of me, and the moment I was standing and I didn't walk towards them, and for that moment I was like, this is what I imagine my life to be when I am 50 plus. They had such a beautiful aura, I can't even tell you in words. I was so appalled like by seeing them, being able to witness it कि okay, this is a chance of a lifetime, because you feel like okay, they like वो नहीं होता कि उनसे वो vibe आती है कि they are officers, which is a very good thing to feel, क्योंकि you are able to sit and you got an opportunity to be sitting in front of them. वहाँ पे वो इनफ होता है. वहाँ पे दैट डिज़ायर टू बी एबल टू क्लियर द इंटरव्यू, टू बी एबल टू गेट अ रैंक, वो सब दिमाग में नहीं आता. यू जस्ट फील लकी टू बी एबल टू रीच दैट स्टेज. तो बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर स्टेजेस you've cleared or your stages you're gonna get to appear into. Every paper that UPSC conducts has its own up and down. कोई भी पेपर ईजी नहीं है. That is why cracking a government job is tough, because competition is this much, seats are this much. It is tough. But IES has lots of benefits in terms of being an intellectually challenging job, in terms of having that intellectual exposure that we look into being economists, and also to get a chance to learn and learn from very good people in India. आपको chance रहेगा to be meeting such good professors all your life, because you will be connected to them, you will be grateful for their inputs, you will be able to have those inputs and implement it in whatever policies you are making. So वो एक aura होता है, and you feel that aura when you enter that UPSC bhavan, and you feel like okay, your job is done. I remember one thing my dad told me before I was going in for interview, and he said that whatever confidence you have generated in your life in past 25 years, just collect it all together and show it to them that you deserve to be there. And that's the biggest advice I got. And I was like, okay, this is my moment. For the next 20 minutes, I'm gonna be my most confident self, and that will do the magic. And trust me, I came out, I was smiling, I was happy with how my interview went, because I realized in that 20 minutes, I couldn't have handled it any better. And you know, they entered my interview with asking me what was the last movie you saw. And I couldn't remember my last movie. And the person who was sitting on my right, she told me, movie तो देखते ही होगे. And I'm like, ma'am, I'm not able to recall the last movie I watched. And मैंने वो देखी थी सितारे ज़मीन पर, but it was a good movie to be even communicating to them. अब धुरंधर बोलोगे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा कि वो देखी थी. But सितारे ज़मीन पर was a good movie with a good social message. And that was actually my last watched also. So मैं वो बोल सकती थी, पर मुझे याद ही नहीं आया. I went blank, and I was like, I like to write poetry. That was my hobby also. That's still my hobby. And I was like, I write poetry. And the chairperson ma'am looked at me and she said कि writing भी तो बिना कुछ देखे या बिना कुछ सुने थोड़ी आप लिख पाते होगे. कुछ तो देखते होगे, आजकल के बच्चे हो नेटफ्लिक्स करते होगे, प्राइम करते होगे. एंड शी वाज लाइक, अच्छा मूवी याद नहीं आ रही तो कोई वेब सीरीज़ ही देखी होगी. एंड आई वाज लाइक, मतलब डोंट जज मी फॉर दिस, बट आई फिनिश्ड फ्रेंड्स दिस February. I hadn't watched Friends and it had so much hype, so I wanted to complete it, and this February I completed it in 2025. So I told them I watched Friends. So the ma'am was sitting to my right and she said, वही ना जिसमें Chandler है. And I was like, yes ma'am. कहती, I have also watched it. That is how my interview ended. If I tell this to any stranger, they would not believe it. उन्हें लगेगा ये थोड़ी होता होगा UPSC इंटरव्यू में, बट ऐसा हुआ है. Because they end the interview on such a light note that when you go out, you feel comfortable. You feel कि मैंने अपना इंटरव्यू अच्छा किया है. It was an entire 25 minutes of good economic discussion and a 5 minutes of that light mood to be able to make the candidate comfortable. तो आप समझो, this is not a corporate grilling interview. वैसा कुछ भी नहीं होता. It's very comfortable.
So for those people who are giving CSE and IES both, it is tough to manage. अगर आपके पास time and space allow कर रहा है, pursue one paper at a time, it's gonna be easy. But अगर आप मतलब it is a very good option to be in. इसके बाद आपको CSE करना हो ना करना हो, that's an entire personal call. कई लोग इसके बाद भी CSE prepare करते हैं, and we have examples of people who've done great in CSE after coming into IES. ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं. बट अगर नहीं भी है, इट्स गुड. कहीं ना कहीं लाइफ में सेटिस्फाई होना पड़ता है. यू हैव टू जस्ट चूज़ वॉट योर सेटिस्फैक्शन इज़. सो जस्ट डू दैट मच. बाकी लिंक्डइन, टेलीग्राम हर जगह हूँ. बहुत एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा भी ट्रैवल चल रहा है एंड हमें थोड़ा ट्रेनिंग का हो रहा है कि वील स्टार्ट अ ट्रेनिंग लाइक इन अनदर 15-20 days मेजरली. सो आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड नॉट बी मच ऑन फोन. सो मैं थोड़ा उतना एक्टिवली नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ. बट यू कैन रीच मी आउट, यू कैन सेंड मी योर कॉपीज़ इफ़ यू वॉन्ट. आई कैन हैव अ लुक एट इट. अगर कोई क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम है, कुछ है, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट. आई माइट नॉट रिप्लाई द सेम डे और नेक्स्ट डे और इवन अ वीक, बट वेन एवर आई सी योर टेक्स्ट आई रिप्लाई. उतना एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी आई कैन अश्योर. बाकी ब्लिस पॉइंट हैज़ बीन विद मी थ्रू आउट माई जर्नी. क्रैश कोर्स हुआ, मॉक हुआ. आई रिमेंबर फर्स्ट डे कॉलिंग सर कि सर मैं थक गई हूँ मेंस दे दे के, मेरा मेंस 4 marks से नहीं हुआ एंड आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड विद इट. एंड इज़ इट फाइन एंड फीजिबल कि आई टेक अ ड्रॉप एंड आई गिव IES एंड देन आई प्रिपेयर फॉर CSE लेटर. So he was like, हाँ बहुत अच्छा कॉल है. Get out of that spiral and you'll study something new. You'll feel fresh in life and that has worked magic for me. This year gave me a very new perspective to life and it taught me a lot of things. It was not easy to manage that 40-50 marks का missing paper and then write GE2. It was very tough. I'll not lie. GE1 में that mess up, that 40-50 marks, it can take your entire mains away. It's a lot to miss 40-50 marks because अगर average भी attempt करके आऊँगी ना तो भी 15 नंबर मिलेंगे उसमें. मेरे तो 15 नंबर ज़ीरो हो गए because of that. So वो बहुत painful होता है. But I have written the best paper, that was GE2. But I scored my highest in GE2. I don't know why is this happening, but ठीक है. तो GE2, बट मेरे को लगता है कि काफ़ी सपोर्ट था फैमिली का, मेरे भैया का. वो मुझे ऐसे हाथ पकड़ के लेके चला गया कि हाँ GE2 तो लिख के आना है. एंड आई रिमेंबर आई वॉज राइटिंग GE2 एंड आई हैड टीयर्स फॉलिंग ऑन दैट वेरी आंसर स्क्रिप्ट बिकॉज ऑफ दैट पेंट अप GE1 का फॉल्ट. बिकॉज 1.5 घंटे बाद अगला पेपर लिखना है. इट्स नॉट ईजी टू मैनेज योर इमोशंस दैट क्विक. Even in GE3 when I was reading after coming back home, I told my dad I'm not able to recall anything that I've studied. मेरे अंदर कुछ जा ही नहीं रहा था because of that pressure कि मेरा नहीं होगा. And my dad said I can't see you deal with so much pressure. If you want, you just leave that attempt. Don't give the other 2 papers. But I was like 4 दे चुकी हूँ, let me give another 2. But that is how your revision works. शायद revision strong था इसीलिए paper manage हो गया. Otherwise जो मेरा mental state था, only I know how I've managed that means. बिकॉज वो इतना पैनिक ही हो गया था. तो आई एम जस्ट सेइंग डोंट अटैच टू मच होप्स कि भाई यही अटेम्प्ट है हम तो पहले में करेंगे. एज लॉन्ग एज यू क्लियर इट्स फाइन. कई बार ये हो जाता है भाई पहले में निकालना है, ये नहीं होता लाइफ में. एज लॉन्ग एज यू क्लियर इट्स ग्रेट. एनी ईयर यू क्लियर इट्स द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. मैंने बहुत अनड्यू एक्सपेक्टेशंस देखी हैं, एस्पिरेशंस देखी हैं. मैं भी उस फेज़ में रही हूँ यार. फेलियर्स किसी को भी ईजी नहीं लगते. मैंने भी 4 साल देखे हैं वो. तो आई नॉट से इट्स एन ईजी जर्नी, बट आई से कि वंस यू गेट देयर इज़ अनदर लेवल ऑफ मेंटल पीस. सो उसके लिए काम करो. जस्ट डू इन योर बेस्ट एवरी सिंगल डे. कोई आवर्स फिक्स नहीं है. किसी दिन अप होता है, किसी दिन डाउन होता है, किसी दिन बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता. पिक अप वेरी लाइट पेपर्स ऑन दोज डेज. मैं नेशनल इनकम जैसा टॉपिक उठा लेती थी जिस दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था. कंप्लीट भी हो जाता था, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती थी, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता था उसमें. अब आप सोचो मन नहीं लग रहा है लेकिन मैं तो ट्रिक्स पढ़ के दिखाऊंगी. कैसे पढ़ लोगे ट्रिक्स? जिस दिन बेस्ट फील करो उस दिन पढ़ो ट्रिक्स. यू गेटिंग माई पॉइंट? डोंट गिव दैट प्रेशर इन योर हेड. मैनेज हो जाता है. कुछ भी डाउट हो प्लीज़ रीच आउट टू मी. आई एम अवेलेबल. अभी तो मैं बहुत ही फ्री हूँ जब तक ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट हो रही. उसके बाद में भी थोड़ा बहुत बिजी हो जाऊँगी मैं भी विद CSE एंड एवरीथिंग. आई माइट गिव CSE, नॉट श्योर कब देना है, बट आई एम प्लानिंग टू डू इट. नॉट श्योर इवन इफ़ आई डू इट. अभी बस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोच रही हूँ कि आई कैन परस्यू इट. सर मुझे बोल रहे थे कि एक बार डिस्कस करना दैट यू आर स्टिल इन दैट लूप. मैंने कहा आई एम स्टिल देयर बट it's a different prep and it's mental peace and I'm happy with the job. It's not like I'm giving CSE because I consider IES any less. That's not the case. I'm just waiting for my training to start to see if I like it that much,
टू डू. कुड बी कि इकोनॉमिक्स इज़ माई फोर्टे, बिकॉज बचपन से इकोनॉमिक्स ही कर रहे हो. 11th-12th के बाद में हमें कोई और सब्जेक्ट ही नहीं आता. मेरा बैचलर्स इज इकोनॉमिक्स ऑनर्स, माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स. आई डोंट नो एनी अदर सब्जेक्ट. तो कुड बी आई लव इट इन ट्रेनिंग एंड आई ड्रॉप CSE. दैट इज़ ऑल्सो अ स्कोप राइट नाउ. बट होता है कि वी एंड अप प्रिपेयरिंग कि हम तो सारे UPSC के पेपर्स ही टारगेट करेंगे, बगल, उसमें निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो जस्ट डोंट टेक टू मच प्रेशर फॉर दैट. बाकी तो यू गाइज आर डूइंग गुड, यू गाइज आर इन द गुड मेंटरशिप ऑफ सर एंड एवरीबडी. तो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए. आई वॉज कमिंग टू दिल्ली, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू मीट पीपल. सो आई टोल्ड कि मैं आ रही हूँ, तो अगर पॉसिबल हो तो आई कैन इंटरेक्ट विद फ्यू ऑफ यू, बिकॉज चैट एंड टेक्स्ट पे पॉसिबल नहीं हो पाता. मैं भी बहुत लिमिटेड स्कोप में ऑपरेट कर पाती हूँ कि मैं आपको कैसे बताऊँ. तो अगर कुछ डाउट है तो यू कैन मीट मी एंड डिस्कस. बाकी तो आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. अगर आपको कुछ चाहिए तो आई कैन डिस्कस एनीथिंग यू वांट. मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि मैं बुक्स एंड ऑल में नहीं जाना चाहती थी. आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस स्ट्रैटेजी, तो दैट आई ट्राइड कवरिंग. ठीक है.